This meeting is being recorded. वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के जो ट्रेनिंग सेंटर है BSI एंड BSDL, और सम पार्ट हमने टेलीकॉम का भी कवर किया है। तो आज आखिरी सेशन है और इसका जो लास्ट पार्ट बचा हुआ है जो हमारी तरफ से वो है इंस्टॉलेशन ऑफ मॉडल स्किम, जिसको नीरज सर अभी थोड़े पहले दिखाएंगे। उसके बाद जो साइबर सिक्योरिटी का थोड़ा सा पोर्शन आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है वो मैं डिस्कस करूँगा, देन सेशन इज ओवर होगा। और कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, हमारे गौरव सर से रिक्वेस्ट रहेगी कि वो आपको ऑनलाइन जाकर इवोल्यूशन एंड फीडबैक देंगे ताकि सर्टिफिकेट जनरेट हो सके। आपका जब तक आप उसको ऑनलाइन एंट्री नहीं करेंगे सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा। तो लिंक और पासवर्ड गौरव सर के पास में है, वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कैसे करना है। बस कीप इन द माइंड, सभी से निवेदन है कि किसी भी हाल में आज रात को 12 बजे से पहले उसको कंप्लीट करना है। जब भी आपको लिंक देंगे आपको वो थोड़ी देर में सर दे देंगे, तो प्लीज़ अपने मोबाइल से आप उसको लॉगिन करके, सभी का अपना इंडिविजुअल पासवर्ड है, उसको लॉगिन कर सकते हैं। उसमें पूरा गाइडलाइन भी दी हुई है पूरी की पूरी, आप उसकी मदद से उसको सारा चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका फीडबैक जैसे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन जनरेटेड होगा, क्योंकि हमने हर चीज़ ऑनलाइन करी हुई है, तो ये भी आपकी ऑनलाइन जनरेट हो जाएगी। तो बिना देर किए मैं ये अपना ये सेशन है, सबसे पहले मैं नीरज सर से बोलूँगा। सर आपका स्वागत है, और आपका जो बचा हुआ सेशन है और कुछ डाउट या क्वेश्चन है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको पहले आप पूरा करिए, फिर हम उस सेशन को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। क्या नीरज सर? Yeah, so any doubts, any query from the yesterday session? Any participant? Yes, anyone have a doubt or query related to last session based on VLSI simulation and design on model sim? Okay, so we consider that there is no issue. So let me go for installation part, right? Kindly confirm whether what you have seen on the share screen. It is a blue color image, model sim VLSI system getting started with VLSI and VSDL. Yes, sir. Okay. So now I am discussing about how to install model sim on a system. So first of all, you may visit intel.com content, and if you are not familiar or if you're not able to remember the URL, you simply go to the Google and type model sim FPGA starter edition Intel. You just type this, then you got this link. Then you click on download model sim Intel FPGA edition software. Now this screen has come. You may select standard because free version is only standard. 3 variants are available: standard, light, and pro. So you may choose standard right now, but as you are the faculty member of the government organization, so if you share your email, which is on NIC platform or gov.in, then you got full pro version, and the stable version right now is 20.1. and if you are working on Linux, then in that case you select Linux, else you select Windows, right? Now this window has come and you may select model sim Intel FPGA edition, which is a starter edition. So once you install it, there is a legal disclaimer is there, and you read all these things and then select the I agree. Then it asks you the credentials. So before installation, it is mandatory you have a credentials on Intel platform. It is a free of cost, no need to worry about that. So you have to enter your credentials here, or you may register
link is available at the right hand side, right? So you may fill their credentials and installation has automatically start. Once download has occurred, you got a model sim setup 20.1. For installation purpose, in normal, we are simply double click the executable file, which is a wrong method. You may right click and there is an option run as administrator. So you may select run as administrator. When you select run as administrator, this window has come and you may select next. After that, two options are available. One is starter edition and another is full version. There is no change regarding the file. Only thing is that you may require a license copy or you need a license key for full version of model sim. So for the time being, you may select model sim Intel FPGA starter edition and then click next. Then the license agreement you have selected is standard. So what are the pros and cons while using this model sim software? After reading, you may select I accept the agreement and then click next. Then it asks the installation directory. It is a independent application. It's not related to the Windows platform. So a separate directory you can make and click on next. So when you click on next, then it provide you the information that how much disk space is required. So that is around 4.3 gigabytes. And then you select, then installation has occurred. Now installation has on the way. Finally, when installation has occurred, this window has come. Never ever click provide your feedback. You may uncheck this and then click finish. This is once you install, it is available on the startup menu, model sim Intel FPGA startup edition. When you click this window first come and then this window has come. So first you may click close and now you are able to work on model sim Intel FPGA starter edition 20.1. Now up to this, if you have any question, you may please unmute yourself and raise your doubts. Okay, now we start. Each activity treated as project in model sim. So you may give go to visit file menu, in which file menu at the beginning you may select new, then go for source and then select VSDL. Or you have an option, if you have already developed many things, then it treated as library and you can also import. And export option is available. So in file menu, if you go for export, different options are available. Waveform file, tabular list, event list, image, memory data, column configuration, and also HTML format data is also available for a particular library. If you go for library, then call stack capacity,
class browser, coverage, data flow, files, library, transcript. Basically, what activity you want to display. So right now, I want to display only libraries and transcript. So as you see that only libraries has been shown, and at the bottom transcript is there. Now next is compile. So here two options are available, compile and compile options. In compile, another pop-up window has opened. It gives you the option to select a particular file and then you press the compile button. If you choose compile options, then which syntax you are using. In VSDL, various variants are available: 1987, 1993, 2002, and 2008. Normally, whatever the logics you are defined right now, the standard logic is 1164. So remember, before compilation, everything is based on which language syntax you have chosen, and you have to optimize for which standard. So this has been available on compile options. Now next is simulate. So in simulation, there are various variants are available only for current logics, or for line based, or for step in, step out, or step over. Three options are more available. If you want to start simulation, then start simulation button is available. Now again, add it. In add it, you have an option to add it wave, to add it list of activities, to add it a log, to add it a data flow, or to watchdog. A watchdog is basically monitoring what is going on. In library, you have an option to make some edit on the available library, or you also able to update in the existing library, or you have an option also to recompile a library. In tools, you also able to make a report and garbage collector also. Garbage collector is basically whatever you are doing, maybe you make some mistakes, that may also you may collect, so you able to evaluate what actually we are doing, so that we not get the appropriate results. In the layout tab, you have an option to reset the entire design part. You have an option to set the layout of the simulation. In bookmark tab, maybe you are forgot something, so to memorize this, we put lot of bookmarks. There are some predefined bookmarks, and you are also able to make a custom bookmarks. And the second last one is windows. So how you can manage different windows open either in horizontal manner or vertical manner. Now working in model sim. So first, be a beginner. First you create a project. So each activity treated as a project. So go to the file menu, then select new, and after that you may select project. Here you give the project name, as I have given Gates, then project location where you want to save. Remember, in the last class I also told you, you not able to make a project location inside Intel FPGA 20.1 folder. So that is outside. And by default, library work file is work. Then create new file, added existing, create simulation, and create new folder.
4 options has been available. So at the beginning, we are choosing create new file, and we give a name and the file type. So different options are available. So we are choosing VHDL. Then you click OK. Now file has been created, and you observe that status is question mark. This is because of as the file has no content, and second thing, it is not compiled. Once you compile, I put something, and you observe that error has been generated. Now I take one logic which is related to the D flip-flop. So we have an option, either positive edge or negative edge. So two options we can analyze. So you just copy this code and put up in a file and then compile. So that portion we already covered in the last class. Now we perform live installation. So I already download the file model sim setup, and I hope that remaining participants also download this. So you simply normally mostly time we are just double click the executable file. So instead of executable file, first we check whether there is any file model sim. No, there is no. So now I go back here. So right click, then option has run as administrator. Once you click run as administrator, I recommend that you may work on the system whose RAM is approximately minimum 8 GB RAM, and recommendations are 16 GB. So if you remember in the PPT that this window has come, now click on next. Again, it has those two options. So right now we don't have any license key. So we select starter edition, then select next. We read all the terms and conditions, and then click on I accept the agreement, then click next. Here is a file. You may able to change a D drive, E drive, anything. Then click on next. Again, it asks the amount required to install, that is around 4.34 GB. Then click next. Now installation has started. The time taken by installer to install Model Sim Intel FPGA Starter Edition totally depends on the size of the RAM and the processing of the CPU in your system. Installation is on the way. It takes, if your machine has 16 GB and i5 11 generation, so it takes around 1 to 2 minutes. In Intel Model Sim, this application, you have a plenty of options are available. Means no need to install a separate software for learning Verilog and other design part. It is a complete package in which you perform simulation, design, fabrication,
part also and list of BOM also. So never check this, you simply finish. Now Intel has installed and you simply tap model sim and open. So first window this come. Now this window has come. You may close it. Now click on file, new project. Yes. Now you give some project name. Then project location and work file and click OK. Then you have more options, create new file. You give AND gate. Select the file type and then click OK. So AND gate has formed. Now what I want to see, presently transcript, library and project has been available. Here view, if you want more, if you want process, then process has been shown. If you come to object, so object has come. Right now there is no object, there is no process because I'm not writing anything. Now this is transcript. I simply compile all. It gives error because nothing is written in a file. This one, nothing is there. If you write your program here and then you recompile and no problem or no syntax or syntax error has come, in that case, when compilation has successfully completed, then you go for simulate, start simulation. Under work, your file is there. Then you click OK. In object, X1, X2 is there. Go to modify, apply wave, clock or constant you have. Now you provide the values as we already discussed in a previous session. So up to this, any question, any doubt in your mind, you may please raise. Any student? Any participant? Yes, KK sir. Hello. Yes. Neeraj sir. Yes. Can I ask you how we will write the text bench and how we will be synchronize with the programs of the text bench for finding the waveforms, or you can say for testing any circuits? Actually, in this course, we are teaching you VSDL. So just a minute. I'm sharing my screen first.
Please confirm. Are you seeing that I am work on compiled menu and actively compile all is there? हाँ दिख रहा है. Dikshit sir, please confirm what you have seen on your screen. Compiled. So this is the compile Okay, or something like that. Okay. Now, sir, here majority.vsd, I have a logic, right, sir? So here library i.ee is there. Use i.tt. Actually, I am creating the blank previously. Now, at the right hand side, you have an option to write your VSDL code, right, sir? And for simulation purpose, you may go for simulation. This is a logic function. We are not involved in any kind of propagation delay. So for propagation delay, when we design a wave editor here, when we are designing a wave editor, x1, x2, x3 are inputs and f is a output. So when we apply a wave here, we are choosing a constant instead of constant, right? We are choosing previously in our logic, if you remember here, standard logic is there, right, sir? So instead of standard logic, you may choose absolute value. So absolute value, if you are putting here, here I'm putting earlier 0 or 1. So instead of 0 or 1, you may put 0.3, 0.1, and you set the threshold value that if value is less than 0.2, it considered as 0 logic, and if logic is more than 3.3, then you can consider as a logic 1. And the propagation delay. So when you prepare this one, so I also told you here you can right click and a wave edit menu has come. I will show you. Yeah, here. So wave edit, you able to edit the wave, and you also introduce the propagation delay. And propagation delay, how much propagation delay? That is totally based on the material we are using. Either we are using silicon or we are using gallium arsenide. So and the impurity is also there, right? So in simulation, we are not get the actual result as we are getting from the real fabricated logic circuit. So we are just simulate whether my logic is working properly or not before going for fabrication. And regarding the test bench, we simply compare the actual values and the values we are getting from simulation, and up to how much it is very near, then we can set that whatever the simulation or whatever the designing part, we are very near to the results. I think I able to give you your doubts or query, or I'm still in the 0 level. Dikshit sir. Yes sir, I am getting your points, but मैं जो पूछना चाह रहा था, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे हम लोग इसमें इनपुट्स को जो ना बार-बार फोर्स कर रहे हैं, हाँ, just we are defining its rise time, fall time for the inputs for this time period. That will be the value 0, and for the after that time, yes, the value will be 1. So मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कुछ टेक्स्ट बेंच ऐसा होता है क्या कि हम लोग इनपुट एक बार जो है प्रोग्राम की फॉर्म में उसको राइट कर दें, और जो हमने प्रोग्राम लिखा है उससे इसको सिंक्रोनाइज करें, तो हमें जो है बार-बार फोर्स न करना पड़े, इनपुट एक बार में ही जो है मिल जाए, सीधा सिमुलेट करें। नहीं सर, आप सर कर सकते हैं। आपको यादव सर ने जो आपको VSDL की जो आपकी क्लासेस ली होंगी, तो उसमें देखिए आपको बताया होगा कि पहले मैं लाइब्रेरी डिफाइन करनी है, then we define entity, then we define architecture, and then we define processes. So when you define a processes where you can define
कि फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यहाँ आप फॉर लूप, इफ लूप, व्हाइल लूप लगा सकते हैं और आप वैल्यूज जो है डायनेमिकली डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने जो ये एग्जांपल लिया बहुत सिंपल लिया है, इसमें प्रोसेस मैंने डिफाइन नहीं किया है, राइट सर? या सर मिसिंग है हमारे उसमें कोर्स में से प्रोसेस? हेलो सर, ओके ओके सर। जॉब ऐड के Actually, अंदर sir- आपने लीप एंड लूप वाला जो देखेंगे ना, उसके अंदर ये चीजें हमने बताई हुई है। आप जो हैंड आउट दिया है उसके अंदर जॉब ऐड प्रोवाइड किया, तो लास्ट में अलग अलग भी हमने एक ही, जैसे मक्स है, मक्स को कितने तरीके से बनाया जाता है वो सारा, तो जो आप जो भी सवाल पूछ रहे हैं, तो जो लास्ट ऑप्शन जो दिया इफ एंड वाइल वाला जो है वो यूज करेंगे तो हो जाएगा। आप तो आप ऐसा करिए ना, मैंने जो जॉब ऐड दिया आप देखेंगे ना, तो पहले मैंने सिंपली तरीके से बनाने की कोशिश की है, फिर इसको मैंने डाटा फ्लो में बनाने की कोशिश की है, फिर मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, और कब लूप वाइल है वो सारा। तो एक ही मक्स को मैंने अलग अलग तरीके से, मैंने इसीलिए अलग अलग नहीं, अगर फाइंड आउट देखेंगे ध्यान से, तो मैंने मक्स को न जाने कितने तरीके से बनाया है, वही चीज आपको, वो इसलिए मैंने लेके कि देखिए आपको डिफ्रेंशिएट समझ में आ जाए सारी चीजें। तो आप इसको प्लीज एक बार फिर से हैंड आउट देखिए, हैंड आउट होपफुली कि आप सभी को मिल गया होगा, वो पूरा प्रैक्टिकल ही मैंने दिया, इसको मैंने कोई थ्योरी नहीं रखी थी, उसमें यही काम किया है। तो आप उसको ओपन करेंगे ना, तो हर एक मक्स को कितने तरीके से मैंने बनाया है वो सारे चीजें, वो इसलिए बनाया कि जो आपका जो लास्ट सवाल है कि प्रोसेस बिल्कुल उसमें होगा, ये आप उसे करके देखिए एक बार प्रैक्टिकल। और जरूरत भी नहीं है उसमें, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, पूरी प्रोग्रामिंग कॉपी पेस्ट करके अपने उसमें डाल लीजिए, आपके पास सॉफ्टवेयर है ही, उसको फिर रन करके चेक करिए उसको, तो डेफिनेटली आपको वही मिलेगा जो आप चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें सर सॉफ्टवेयर लेवल पे आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है। 14,000 लाइन तक का जो कोड है वो बिल्कुल फुल फ्लेज ऑपरेशनल है। एनीथिंग एल्स सर? ओके, नो प्रॉब्लम सर। एनी अदर पार्टिसिपेंट्स? So kindly give your feedback on the chat session about the yesterday and today's session. So your valuable feedback help us to improve the quality of the course and content. May I request to all participants, kindly enter your feedback in the rating of 1 to 5 for the last session and today's session of simulation. Your valuable suggestion help us to improve the quality of the course and content in the form of 1 to 5. 1 represent very poor, 2 represent good, and 5 represent excellent. Sir, good afternoon, sir. Sir, please share the link for the feedback. Sir, please share the link for the feedback. मैम अभी सर ने जो बोला वो अभी अपने सेशन के लिए इसी चैट बॉक्स में बोल रहे हैं करने के लिए, बाकी जो प्रॉपरली जो सर्टिफिकेट के लिए है वो अभी गौरव सर मेरे ख्याल से ऑनलाइन होंगे, तो उनको उनके पास में प्रोसीजर और दोनों चीज़ें पहले वो बता देंगे, आप उसको साथ में करते रहिए, फिर अपने मैं क्लास भी रखूंगा 10-15 मिनट की, तो वो भी करेंगे, दोनों टाइम बच जाएगा। तो अभी के लिए सर पूछ रहे हैं जो कल जो सेशन इन्होंने कराया नीरज सर ने, उसके लिए आप लोग क्या रेटिंग देना चाहते हो, तो इन चैट में आप दे दीजिए। Okay, sir. Thank you. गौरव सर, आर यू देयर? यस सर, गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, थोड़ा पहले इनको बता देंगे ना थोड़ा सा, तो कैसे करना है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो उसी वो बीच में ना मोबाइल में करते रहेंगे, इसी बीच मैं अपना वो क्लास भी ले लूंगा, तो टाइम बच जाएगा, क्योंकि सर्दी का टाइम है, इलेक्शन ड्यूटी लगी है, तो सभी के साथ कुछ ना कुछ इश्यू है, आज मैं समझ रहा हूँ त्योहार भी है। ठीक है, तो आप थोड़ा ठीक है सा सर, मैं एक बार प्रोसेस जो है इवैल्यूएशन का वो शेयर कर देता हूँ सभी पार्टिसिपेंट के लिए। तो सबसे पहले मैं 2 PDF फ्लोट कर रहा हूँ ग्रुप में, कि जिसमें गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस कैसे फिल करना है, और मैं एक बार आपको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर दूंगा ऑन स्क्रीन पे। देन सेकंड जो शीट होगी उसमें आपके नाम के आगे एक 3 और 4 डिजिट का पासवर्ड होगा,
उसका उपयोग करके आप फीडबैक कंप्लीट करेंगे। मैं एक बार शेयर कर दे रहा हूं। व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने शेयर कर दी हैं दोनों चीजें, इवैल्यूएशन गाइडलाइंस एंड फीडबैक। तो जब आप इवैल्यूएशन गाइडलाइंस में देखेंगे, सबसे पहले आपको जो प्रोसेस फॉलो करना है ये कुछ इस तरह के, मेरी स्क्रीन सभी को विजुअल हो रही है? यस सर। ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको training.bsnl.co.in पर जाना है, जो कि डायरेक्टली मैं ब्राउजर से खोल देता हूं। इस तरह से आपको इस साइट पे जाना है training.bsnl.co.in। इससे पहले आपको 3 बार www यूज नहीं करना है, आप डायरेक्टली PDF पे क्लिक करके उसमें आपको अलाउ के लिए एक्सेस मांगेगा, आप उसको क्लिक करें और फिर ये आपको वेब ब्राउजर में इस तरह की कुछ स्क्रीन दिखेगी। देन आपको लॉगिन में जाना है। लॉगिन में सबसे पहले जो आपको करना है काम, इवैल्यूएशन बाय ट्रेनीज, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है, सभी लोगों के लिए कॉमन प्रोसेस है जो मैं भी बता रहा हूँ। देन जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, जो यहाँ पे डिटेल आ रही है स्टाफ आईडी, तो स्टाफ आईडी चूंकि इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर के सर है, तो के सर का स्टाफ आईडी यहाँ पे आपको एंटर करना है। एक बार आप देख लीजिए, इसमें जो इवैल्यूएशन गाइडलाइंस दी उसमें कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी 200304172। ये सभी लोग नोट कर ले, ये HR स्टाफ नंबर सभी के लिए सेम रहेगा, कोई भी इसको चेंज नहीं करेगा। 200304172 ये कोड रहेगा। देन डेट ऑफ बर्थ में के सर की डेट ऑफ बर्थ आएगी, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं ऐड करनी है। जुलाई 1979 ये आपको इसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। देन जो भी आपकी स्क्रीन पे कैप्चा आ रहा हो आप उसको एंटर करिए। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, तो आपको इंस्टीट्यूट में ALTC गाजियाबाद का सेंटर सेलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट गो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं ये डिटेल आ रही है, लास्ट में 6 नंबर पे आप देख रहे होंगे जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम था, ये आपकी डिटेल आ रही है, VLSI डिजाइन विद VHDL। ठीक है, तो आप जब इस ट्रेनिंग के लिए आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे, आपको राइट में एक टैब दिख रहा है नेक्स्ट। तो इस नेक्स्ट टैब में जो भी आपका नाम है, इसमें ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट में पूरे 89 पार्टिसिपेंट जो भी हमारे ट्रेनिंग में है, सभी लोगों की लिस्ट इसमें दी हुई है। और जो पासवर्ड है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से PDF शेयर की गई है, वहां से आप अपना 4 या 3 डिजिट का पासवर्ड एंटर करेंगे। देखिए जैसे मैं अमृत सर का एक बार आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आपने सेलेक्ट किया मैंने अमृत प्रकाश सर का नाम, तो ऊपर ट्रेनीज नेम में अमृत प्रकाश सर का नाम आ गया। देन इसमें पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड के लिए एक आपको अलग से PDF शेयर की गई है, जिसमें आप देखेंगे कि ट्रेनीज का पासवर्ड लिखा हुआ है 3 डिजिट का और 4 डिजिट का। तो वो पासवर्ड हम एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद सबमिट के बाद ये आपको इवैल्यूएशन पे जाना है। इवैल्यूएशन के लिए ये अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से रिलेटेड आपको इस पे असेस करना है, वेरिएबल सेटिस्फैक्ट्री और अनसेटिस्फैक्ट्री, तो ये आपको इवैल्यूएट करना है। और लास्ट में जो ये 7th नंबर वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसमें आपको 0 to 10 रेटिंग करनी है, और अगर आप 8.6 से कम रेटिंग दे रहे हैं इस ओवरऑल पूरी ट्रेनिंग में, तो उसको आपको अलग से रीजन मेंशन करना है, तो वो आप अकॉर्डिंगली अपना यहाँ पे जो कोर्स क्वालिटी इंडेक्स है वो आप एंटर कर सकते हैं। यदि आपका कोई और सजेशन है तो आप यहाँ पे बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसको आप एंटर करने के बाद सबमिट जरूर करिएगा। सबमिट जब तक आप नहीं करेंगे आपका इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, और ये प्रोसेस आज आपको कंप्लीट करना है आज की डेट में 12 बजे से पहले। अदरवाइज ये जो ट्रेनिंग का डैशबोर्ड में आपके नाम लिख के आ रहे हैं, फिर ये लॉगिन प्रोसेस आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट या 3 मिनट का समय ले लें, अभी भी जब भी अभी क्लास चल रही है इस बीच में, तो इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट कर दें।
Excuse me, sir. Sir, please share the PDF of the passwords. मैंने शेयर की हुई है व्हाट्सएप ग्रुप में, आप एक बार Actually, चेक कर मैंने लीजिए। क्लियर चैट कर दिया है, तो I can't see. सॉरी, मैंने पास चैट्स को क्लियर कर दिया है, तो जो पास में आपने भेजा है वो I don't have. ओके, मैं रुक जाइए, आपका बता दे। मैं एक बार स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, जिनको भी नहीं दिख रहा है तो वो अपना एक बार पासवर्ड नोट कर ले। व्हाट्सएप की पीडीएफ है मैडम, चैट में नहीं है। व्हाट्सएप पे है आपके, एक बार मैंने स्क्रीन पे WhatsApp भी की शेयर कर PDF दिया है। निकालिए उसको। देखिए स्क्रीन पे भी मैंने शेयर कर दिया है, और आप लोग एक बार देख ले। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ धीमे से, तो ये अल्फाबेटिकली शॉर्ट है, ये लिस्ट है, और आप देख लीजिए इसमें आपके नाम के आगे जो भी पासवर्ड लिखा हुआ है उसको आप नोट कर लीजिए तुरंत। Okay, sir. Thank you. जी। हेलो सर, इसमें एचआर स्टाफ नंबर तो चेंज हो रखा है सभी में, आपने कहा था कॉमन देना है। नहीं मैम, ये एचआर नंबर आपका नहीं है, ये स्टाफ के लिए, ये जो आपकी लॉगिन आईडी बनी है ये आपका कोड है। लेकिन जब हम इवैल्यूएशन करेंगे तो इवैल्यूएशन शीट एक कोऑर्डिनेटर के नाम से होगी, जो कि के सर हैं गाजियाबाद एएलटीसी सेंटर के लिए हमारे। ओके सर। एचआरएमएस कोड सर का ही पड़ेगा, सभी लोग कॉमन रखेंगे। सर वो शेयर किया है आपने कि नहीं? मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों चीजें। व्हाट्सएप पे पीडीएफ पढ़िए, नंबर 2 पीडीएफ देखिए। वो शायद 200304 ऐसे ही नंबर है ना सर? हाँ, ये जो ट्रेनिंग गाइडलाइंस वाला प्रोसेस है अभी दोबारा भी शेयर कर दिया गया है, आप उसमें देख लीजिए। थैंक यू सर। सबसे बड़ी बात है कि शेयर कर रहे हैं सर। ये एक बार बस मैं शेयर कर दे रहा हूँ सर, इनको एचआरएमएस कोड कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को, तो ये कोड सभी के लिए सेम रहेगा। एचआर स्टाफ कोड सभी के लिए सेम रहेगा, कोई भी इसको चेंज ना करे, अपना एचआरएमएस कोड ना उसमें एंटर करे, ये कोड सेम है सभी के लिए, और ये डेट ऑफ बर्थ भी सेम है सभी के लिए। हम तो आपका भी करेगा, लेकिन उसमें कई बार वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि स्मॉल और कैपिटल का बड़ा इश्यू आता है। तो आप मेरे वाले से यूज करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपके मैं भी आप ही की तरह एक ट्रेनिंग काउंट होता हूँ एज ए कंप्यूटर की भाषा में। जो कंप्यूटर है वो हम सबको एक जैसा ही ट्रीट करता है, ठीक है ना। तो मेरा तो लिखना आसान है, आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सभी लोग कर रहे होंगे प्रोसेस। यस यस, ज्योति मैडम आपने लिखा है कब तक? तो ये आपको मैं बता दूं, ये रात को 12 बजे के बाद दिखाई नहीं देता, गायब हो जाता है ये, फिर हम कर भी नहीं सकते इसको। तो कोशिश करिए कि आज ये कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं सर्टिफिकेट नहीं जनरेट कर पाऊंगा मैं। तो वो बहुत ज़रूरी है। पेपर में कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने ही पड़ते हैं, और जब से ऑनलाइन हुआ है तो काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। उसके बाद का प्रोसेस में टाइम बहुत लग जाता है, फिर अब से मैनुअली भरवाएंगे करेंगे, वो लंबा प्रोसेस है। उसमें गौरव सर भी परेशान होते हैं, सामने वाला भी परेशान होता है, मैं भी परेशान। ठीक है सर, ओके सर, ओके, वी विल डू इट बाय टुडे इवनिंग। थैंक यू मैम। ओके सर। थैंक यू सर। मैं 15-20 मिनट की थोड़ी क्लास ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको ओवर करेंगे। नीरज सर, आपको भी कुछ और रह गया तो बताइए सर, ना शुरू करते हैं। नहीं, नो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, आपको भी बहुत अच्छी रेटिंग दिया इन लोगों ने। बाकी ओवरऑल अभी जब कंपाइल होगा तो भी हम एक बार देख लेंगे, ठीक है ना। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया, बहुत अच्छा लगा। और कुछ भी क्वेरी हो तो आपका नंबर अपना कुछ शेयर करना चाहें, ईमेल आईडी शेयर करना चाहें तो आप शेयर कर दीजिए सर चैट में। नीरज सर? हाँ, my mail ID is Neeraj NEE. Okay, I am typing on chat. यस यस, चैट में आप शेयर कर दीजिए। ओके, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लास्ट में, क्योंकि जब कोई चीज़ किसी ने पूछा है तो एक उसको भी कंप्लीट करते ही चलें। पहले मैं समराइज कर लेता हूँ। हमने ये जो प्रोग्राम बनाया था इसमें BSDL
का यूज करते हुए VLSI कैसे बनाते हैं। तो पहले दिन का जो सेशन था हमारे अभिषेक सर ने लिया था, उसमें हम लोगों ने एक जनरल, वो आप लोग पढ़ते भी हैं, कॉलेज में भी पढ़ते हैं, और उसमें फाउंड्री सिस्टम और वो सारे चीज़ें कैसे कराई जाती हैं, जो अपने आप में नॉर्मली एक फाउंड्री सेकेंड पार्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड और थर्ड डे द्वारा मेरे द्वारा सेशन लिया गया, जिसमें एक अमित सर थे हमारे, वो भी आपके सामने आए थे। तो पहले मैंने जर्नलिस्ट कैसे काम किया जाता है उस पर हमने बात की थी, और VHDL कोडिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। अल्ट्रा का नाम दिया था, जिसको आज हमारे नीरज सर ने इंटेल नाम, उस दिन मैंने बोला था इसका नाम कन्वर्ट करके इंटेल। बाय डिफॉल्ट अगर दुनिया में जाएंगे तो अब ये दो ही पार्ट में डिवाइड देगा, एक इंटेल बेस्ड, दूसरा नॉन इंटेल बेस्ड। ठीक है, तो VHDL प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये कंपनी बदल गई, नाम बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन प्रोग्रामिंग में आपकी वही रहेगी, वो इंडिपेंडेंट हो गया। इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ही होता है आपका। तो उसमें हमने प्रोग्रामिंग सीखी, और हमारे जो अमित सर थे, इन्होंने नेटवर्क ऑन चिप एंड और आपका सिस्टम ऑन चिप पे उन्होंने एक अपना थोड़ा प्रेजेंटेशन दिया था। और आपका जो कल का सेशन और आज का सेशन नीरज सर के द्वारा लिया गया, जिसमें आपको मॉडल स्ट्रीम, हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसको कैसे इंस्टॉल किया जाए, कहाँ से सॉफ्टवेयर निकाल सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का सारा हैंड आउट और उसके रिलेटेड जो जॉब ऐड है वो हमने ग्रुप में शेयर कर दिया है। कम से कम एक जॉब ऐड गौरव सर डिस्कस कर लेंगे कि किस जॉब ऐड को पूरा करके भी आपको सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी को एज ए क्विज या फिर एज ए क्विज जो भी है हम बात कर लेंगे उनसे। ठीक है, वो हम एक बार कंप्लीट करके आप लोग हमें दे सकते हैं, तभी जाके आपका प्रोसेस, तो आपका इवोल्यूशन आप तो कर ही रहे हैं, एक चीज़ और रह जाती है, वो भी उसके साथ हम लोग पूरा कर लेंगे, जो कि जॉब ऐड 1 से लेके हमने करीब 7 जॉब ऐड और दिया है, और भी शेयर कर दूंगा मैं मेरे पास। और इस जॉब ऐड का प्रयोग आप अपने स्टूडेंट के लिए कॉलेज में आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, टेलीकॉम सेक्टर को भी इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व किया, तो मैंने पहले दिन थोड़ा सा इन्वॉल्व किया था। और उसमें एक चीज़ लास्ट में मैंने आज फाइनल चेक किया, कोई चीज़ पूछी और रह गई हो, तो किसी ने कहा था साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, वो क्या मतलब इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम में, तो उसी सेशन के साथ हम आज का सेशन ओवर करेंगे। तो आप अभी से पहले तो मैं ही पूछ लेता हूँ। Let me interrupt for a while. Yes, if participants are interested, then ALTTC also offer course on embedded system and robotics, in which we teach you how to work on Atmel series-based microcontroller, and there is another integrated board, Raspberry Pi, if you remember. So we also impart training on IoT also. So any participant, then I request Saurav sir to kindly arrange the training on these two domain. We also impart on that. So the trainees from different polytechnics may got benefits, and they also start, as this is a part of NSDC, Government of India initiative. Thank you. थैंक यू सर। मैं अब शुरू करता हूं बिना किसी देर किए। सर यस सर, बताएं शिवकांत सर। सर एक्चुअली रजिस्ट्रेशन डिटेल में जो जा रहा हूँ, जब लॉगिन करने के बाद फीडबैक भर लेने के बाद जब जा रहा हूँ, तो उसमें समस्या ये हो रही है, जो मेरा डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सबकी 1 जुलाई 1/1/1980 रख दिया। जब डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं होता, आपकी नहीं हो, सबकी एक ही पड़ती है, वो भी 1/1/180 आया होगा, वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर ने डाला है, उसको हम अपडेट कर देंगे, उसकी कोई समस्या नहीं है। वो बाय डिफॉल्ट हमारे सॉफ्टवेयर में हमने ऑप्शन बना रखा है कि अगर डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल नहीं है तो ये चीज़ तो होगी, तो वो हमारे ऑटोमेटिकली रहता है कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, इसलिए वो चीज़ हो सबकी एक जैसी ही होगी, आपके अकेले नहीं, सभी की एक होगी। ठीक है ना? उसका मतलब हमारे लेवल पे अगर हम उसका इवोल्यूशन करेंगे तो हम उसको ये मानते हैं हमने डेट ऑफ बर्थ एंट्री नहीं की है, इसलिए इसका इशू वो मत परेशान मत होइए उसके लिए। ठीक, थैंक यू। ओके, मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा, लेकिन जो सवाल पूछा गया वो थोड़ा सा आप लोग भी इसको समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आप ये भी समझ पाएंगे कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड रिलेटेड किससे है, कंप्यूटर साइंस से है, IT से है या इलेक्ट्रॉनिक्स से है। तो आपको क्या लगता है कि किससे रिलेटेड होगा? यस, कौन बताएगा? आदर्श सर, आलोक सर आप हैं? आपकी आवाज़ उस दिन बहुत अच्छी, मैंने रिकॉर्ड में चेक किया था, बहुत अच्छी आई थी। आलोक वर्मा सर, आर यू देयर?
कोई और, एनीवन? हाँ सर बताएं सर, हाँ। मैं फीडबैक फॉर्म में थोड़ा बिजी था। ओके, कोई बात नहीं। मैं आज ये पूछना चाह रहा हूँ, सभी से पूछ रहा, सवाल तो मेरा सभी से है कि साइबर सर सिक्योरिटी अगर मैं एकेडमी के माध्यम से सोचूं तो ये किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से रिलेटेड है या आईटी वालों से रिलेटेड है या फिर कंप्यूटर साइंस वालों से रिलेटेड है या कोई और स्ट्रीम है उससे रिलेटेड है? आपको क्या लगता है? सर साइबर सिक्योरिटी तो मेरे ख्याल में आईटी फील्ड का ही है सर, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड ही जितने भी हमारे टूल्स होते हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड ही होते हैं। उसमें हार्डवेयर का तो इतना ज्यादा रोल होता नहीं है। ठीक है, आपने आपने आपका एक पॉइंट हमने नोट कर लिया कि आपको लगता है कि सारा चीज जितना भी फ्रॉड होता है मैक्सिमम ऑफ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, राइट? ओके, यस सर। ठीक है। इसके अलावा और कोई हार्डवेयर में कोई बताना चाहिए कि हार्डवेयर में भी फ्रॉड हो सकता है या कोई और तरीका से हो सकता है? मैं नाम लूँगा, अल्फाबेटिकली नाम आ रहा है, मैं एक रैंडम नाम ले लेता हूँ सारे। अनुराग अग्रवाल सर, आर यू देयर? अतुल सर, यस। हेलो हाँ शक्ति सर, बताएं। सर, हार्डवेयर में भी जो है फ्रॉड हो सकता है अगर हम पावर सिस्टम की बात करें तो, कि इफ वी आर ट्रेडिंग आवर इलेक्ट्रिसिटी और वहां पे अगर हम कोई डेटा जो है सिस्टम में चेंज करते हैं तो देन इट मे बी चेंज इन हार्डवेयर आल्सो। ठीक, कई लोगों ने। गुड आफ्टरनून सर। यस संदीप सर, बताएं। मुझे लगता है सर, जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफलाइन यूज करते हैं तब कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हम किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच से हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और हमने उसको नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया, इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है, तो हमारे पास ये साइबर सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाता है। तो मुझे नहीं लगता कोई स्पेसिफिक ब्रांच से रिलेटेड है। अगर हम नेटवर्क पे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो ये साइबर सिक्योरिटी वहां पे आ जाएगा। चलिए ठीक है, कंसर्न आपकी हो गई। वीर सर ने लिखा आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, रेणु मैडम लिख रही हैं प्रोसेसर एंड प्रोग्रामिंग से। चलिए, ये मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि आपके यहाँ बच्चे डिप्लोमा होल्डर के आते हैं तो अभी पहले और हम लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है कि ये रिलेटेड किससे है। तो बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर फ्रॉड जो हमें देखने को मिलता है वो सबको लगता है कि भाई सॉफ्टवेयर मैनर से होता है, यूजर एंड पे होता है, तो डेफिनेटली वो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो गया है या नहीं है। हम इसका हमने अभी लास्ट सेशन में जो डिस्कस किया था उसी को मैं फिर दोबारा से पीपीटी के माध्यम से किया था, ये चीज़ हमने डिस्कस किया था सबसे पहले। तो मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक हमने आज का जो नेटवर्क है, आज के ज़माने में जो हम लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो ओवरऑल राउटर और इनके कनेक्शन से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने बोला, रिलायंस की अगर बात करूँ या कोई भी जो भी नया नेटवर्क होगा, आपको डेफिनेटली एक लोकल वाई ये उसमें राउटर और स्विचेस का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर रिलायंस की बात करें, अगर आपको लगता है कि आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे आप टावर में जो भी ये नियर बाई स्विच से जुड़ेगा और ये आपका मोबाइल फोन है, यानी जो भी नया नेटवर्क है 4G या 5G जो अपकमिंग होने वाला है वो इस तरह का कम्युनिकेशन होगा सीधा सीधा। और ये फाइनली डिफरेंट राउटर के नाम अलग हो सकते हैं, लैंडलाइन में इसका नाम अलग रखते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन में नाम अलग रखते हैं, लेकिन आज के ज़माने का जो बेसिक कम्युनिकेशन है वो सिंपली राउटर और स्विच के ऊपर है। ठीक है, और जो राउटर का अलग अलग, यहाँ पे मैंने सिंपल राउटर का जो बेसिक नाम राउटर लिखा हुआ, और राउटर की कैटेगरी हमने लिख दी। एक हमने बताया था मेन कैटेगरी होता है, दूसरा होता है हमारा कस्टमर ISP जो इंटरनेट दे रहे हैं, तीसरा आपके कॉलेज का। तो अगर मैं मोबाइल की बात करूँ तो भी आज के ज़माने में अगर जो भी नया कम्युनिकेशन आ रहा है या जो भी हम नया लगाएंगे वो सारा का सारा फाइनली वो इसका अरेंजमेंट इसी तरह से होगा आपको। ठीक है ना। अब नेट बैंकिंग तो सबको आती होगी सर, आती है? यस सर, मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई है नहीं आज की डेट में इसको नेट बैंक नहीं की आती है। एक चीज़ करते हैं, यस एक चीज़ और मैं पहले व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। देखिए, जब कोई हम काम कर रहे होते हैं कहीं भी आप अपने कॉलेज में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, कहीं भी हर काम को सही तरीके से चले, सिस्टम सही तरीके से मूव करे, ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक रूल और रेगुलेशन हो। इसीलिए रूल और रेगुलेशन बनाया जाता है। आप यहाँ ट्रेनिंग में बैठे हैं, आपके पीछे भी रूल रेगुलेशन है, उस रूल रेगुलेशन से ही आप मोटिवेट होते हैं, चाहे मन से या बेमन से, दिल लगा के या ना दिल लगा के, लेकिन आप ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। ये भी एक तरीका बनाया गया, भी काम करवाना है, करना है। तो इसके दो तरीके होते हैं। जैसे इलेक्शन में कोई नहीं चाहता ड्यूटी लगे या ना लगे,
ठीक है, नहीं लगता है तो भी खुश रहते हैं, लग जाता है तो उसमें भी दो तरह के मिल जाते हैं, समस्याएं ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग हटने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस सबके पीछे रूल बनाया गया, आप पढ़ेंगे कि इसमें ये रूल के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ये सारी चीजें। तो हर काम के पीछे नियम बनाया गया, और नियम का एक ही उद्देश्य होता है, मोटिवेट करना, ताकि काम हो जाए, सही तरीके से हो जाए। तो ये इंटरनेट भी हमने जो बनाया है, अगर मैं अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से या टैबलेट से अगर मैं यहाँ से हाय हेलो, या मैं जैसे मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ तो मेरा स्क्रीन भी देख रहे हैं, मेरा साउंड भी देख रहे हैं, मेरा पिक्चर भी देख रहे हैं, तो ये मेरी पिक्चर आप तक पहुंचे और आप ही को ही पहुंचे, जिसको मैंने शेयर किया उसी को पहुंचे, ये बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। इसके लिए रूल और रेगुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो जब इंटरनेट की शुरुआत हुई, जब शुरुआती हुआ तो पहले तो कोई डर नहीं था, किसी को कुछ भी बोल दो, लेकिन जैसे शुरुआत हुई 1 by 1 बढ़ने लगे, तो हम सबके सामने चैलेंज आया कि भाई मैं जो मैसेज भेज रहा हूँ टेलीफोन में, एक बार बिल्कुल फिट है कि मैं हाय हेलो बोल रहा हूँ, तो आप इस बात के लगभग श्योर होते हैं कि हम मैंने जिसको नंबर मिलाया वो राइट पर्सन है। इंटरनेट में ये सिक्योरिटी बहुत मुश्किल है कि मैंने किसी को ईमेल भेजा, मैंने किसी को मैसेज भेजा, उसी ने खोला, उसी ने देखा, इस बात को चैलेंज, दिस इज चैलेंजिंग जॉब, नॉट इजी। ठीक है, तो इसको सिक्योर करने के लिए पहले तो नियम बनाया गया कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, कम्युनिकेशन हो, पूरी दुनिया में एक जैसा कम्युनिकेशन हो, कहीं भी कोई बैरियर ना आए। तो इसके लिए उन्होंने रूल बनाया, दैट इज द फर्स्ट, उसको बोला उन्होंने, इसको आप कह सकते हो रूल या रेगुलेशन या कंप्यूटर साइंस या आईटी या जो भी हमारा एकेडमिया डिपार्टमेंट है, इसका नाम दे दिया प्रोटोकॉल। मीनिंग एक है, कोई और नहीं, एक प्रोटोकॉल बनाया गया, एक तरीका बनाया गया, जिसको मानते हुए कि तरीका वो आपका वो सही चला जाए, इंटरनेट मतलब जो कम्युनिकेशन करे प्रॉपर चला जाए। ठीक है, और इन्होंने जब नियम बनाया उसको बोला उन्होंने, पहले बनाया TCP/IP, यानी इंटरनेट करने का रूल रेगुलेशन, उसका नाम है TCP/IP। जब शुरुआत की गई तो ये केवल 4 लेयर की थी, बाद में कुछ जरूरत हुई तो 5 लेयर की कर दी गई, और आज की डेट में ISO ने या हमारी जो भी संस्थाएं हैं जो इंटरनेट को या कम्युनिकेशन को रेगुलेट करती हैं, उन्होंने एक स्टैंडर्ड बनाया कि भाई TCP/IP 5 लेयर की होंगी, जो आप पढ़ते भी होंगे। उसका नाम उन्होंने दे दिया कि लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 5। उन्होंने कहा इंटरनेट करने के लिए 5 नियम सबको मानने ही पड़ेंगे, तभी वो आप जैसे कि कोई डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर तभी बनेगा कम से कम MBBS की डिग्री हो, कोई इंजीनियर कम बनेगा जब उसके बाद BE की डिग्री हो। तो नियम बना दिया कि आप टीचर बन रहे हैं या फैकल्टी मेंबर बन रहे हैं तो आपको प्रोफेसर बनना है या कुछ बनना है, तो पीछे नियम बना दिए। ये नहीं कोई भी आएगा किसी कुछ बना दोगे, भाई नहीं, कम से कम आप MTech होंगे, कम से कम आपको PhD करना पड़ेगा या इतने साल का एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, ये सारे नियम बनाए गए। उसी तरह इंटरनेट करने के लिए भी आपको नियम बना दिए गए कि भाई इंटरनेट करना है तो ये 5 नियम करने ही पड़ेंगे, उसके बाद इंटरनेट आप कर पाओगे, जिसको उन्होंने TCP/IP दिया। सिंपल भाषा में बोलूं कि अगर मैं लास्ट सेशन में साथ बोला था आप लोगों से कि अगर आप एक मोबाइल फोन खरीदने जाते हो मार्केट में, तो मोबाइल फोन खरीदते समय हर एक इंडियन या कोई भी सामान खरीदेगा, उसकी सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है, खरीदने के बाद कोई खरोच ना लगे फोन पे, तो सबसे पहले क्या करेगा, स्क्रीन गार्ड लगाएगा, बैक प्लेट। ये हमारे हर इंडियन की आदत होती है। गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी पे कोई खरोच ना लगे, उसको कवर ढकने की बात करेगा। ठीक है, तो अगर आपसे सिंपल सवाल पूछूं कि अगर ये मेरा फोन नॉर्मल फोन है, इसके ऊपर मैंने कवर, ये मान लो मैंने नोकिया का फोन खरीदा और मैंने इसके ऊपर कवर लगा दिया एप्पल का, स्क्रीन गार्ड एप्पल का लगा दिया, तो क्या लगता है, आप मैसेज को द्वारा बताइए, मैंने नोकिया फोन खरीदा लेकिन उस फोन के ऊपर जो स्क्रीन गार्ड मैंने एप्पल फोन का लगा दिया, जो उसके कंपेटेबल फिट बैठ रहा था, और बैक कवर भी लगा दिया एप्पल फोन का, क्या मेरा फोन एप्पल का हो गया, हाँ या ना? प्लीज गिव द आंसर इन द चैट बॉक्स। बहुत ही सिंपल सवाल है, मैंने सवाल पूछा नो, बिल्कुल प्रियंका मैडम का पहले आ गया, उन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी है। ठीक है, शक्ति सर का आ गया नो। तो आपको भी ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी है कि उस पर कुछ भी लगा दो, फोन तो उसी कंपनी का रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उसी तरह से नियम जब बनाए गए, जब स्टैंडर्डाइजेशन किए गए, तो TCP/IP था। इसमें समय के साथ क्या किया गया, आज की डेट में समय के साथ इसमें उसी तरह का फ्लिप कवर, बैक कवर, आप समझ सकते हो, सिक्योरिटी लेयरें ऐड करती चली गई। सिक्योरिटी, कुछ स्पेलिंग देख लीजिएगा, इतना टाइम मेरे पास नहीं, कीबोर्ड लिखने में दिक्कत हो रही है। सिक्योरिटी लेयर हमारे कुछ ऐड कर दी गई, तो फिर हमारे पास ये जो नियम बनाया बाद में, ये इसको बोलते हैं OSI लेयर, ISO ने कहा OSI लेयर बना दिया। ये जब आपके बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं, ये 7 लेयर की बोल दी गई,
दिस इज 7 लेयर, दिस इज 7 लेयर, 7 लेयर की आपकी ये बना दी गई। और हम लोग फील्ड में काम करते हैं, हमें मालूम है कि इसमें और भी ऐड करते चले गए हैं और आज की डेट में ये 10.5 लेयर हैं, जो भी आपके बुक्स में नहीं मिलेगा। मैं बिल्कुल लेटेस्ट चीज बता रहा हूँ, आपके बुक्स में आपको 7 लेयर तक की पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर कोई ये पूछता इंटरनेट करने के लिए नियम क्या है, तो आप वैसे मैंने पूछा कि फोन बदल गया, नहीं, फोन वही था। तो नियम हमेशा टीसीपी, स्टैंडर्ड इंटरनेट रूल रेगुलेशन, टीसीपी आईपी है। फिर ओएसआई लेयर क्या है, ये एक रेफरेंस मॉडल बनाया ओएसआई ने कि भाई एक रेफरेंस मॉडल बना देता ताकि सिक्योरिटी भी इनबिल्ट रहे। अगर मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ तो मेल उसी बंदे को मिले, अगर मैं कोई अगर नेट बैंकिंग कर रहा है तो राइट पर्सन ही ओपन हो। ये समय के साथ चैलेंजिंग है, वो एक लोनर लेयर का नाम दिया ओएसआई लेयर, जो भी फिलहाल आपके बुक्स हिसाब से जितनी मान्यता दी गई उस हिसाब से 7 लेयर है। बट फील्ड में पीछे और भी काम चल रहे हैं, जो अभी करीब 10.5 लेयर तक पहुंच गई। वो फुल्ली के 1-2 दिन अगर आपका रिसेंटली कोई अपडेशन करेगा आईटीयू, तो आपके बुक्स में ये नए वर्जन आ गया। हो सकता है ओएसआई लेयर के नाम का आ जाए नाम से, या कुछ और नाम आ जाए, वो डजंट मैटर, उसके बारे में जब भविष्य में दिखेगा तब देखेंगे। तो अभी मैं यानी आज की डेट में अगर मोटे मोटे तौर पे बात करें, हम हो चाहे आप हो, कोई भी अगर इंटरनेट कर रहा है तो सीधी सी बात है कि वो ओएसआई लेयर को रेफरेंस मॉडल के थ्रू कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये 7 लेयरें होती हैं, 7 लेयरें आप सभी को मालूम है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मैंने अभी सवाल पूछा था कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जब तक इन 7 के बारे में क्रिटिकली नहीं समझेंगे तब तक आप आगे चीजों को और स्पष्ट नहीं बता सकते। डेफिनेटली आप मैथमेटिकली इंजीनियरिंग मेथड में सब कुछ बहुत अच्छा जानते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट प्रैक्टिकली ये चीज कहाँ पे कैसे लग रही है वो बहुत जानना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 7 लेयर का अलग अलग बच्चों को भी कहते हैं याद करो, मैंने भी अपने टाइम में याद किया था। तो प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, वे अलग अलग तरीका है। पी का मतलब सबको मालूम है फिजिकल, डी का मतलब डेटा, लेयर 1 लेयर 2। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैंने शायद पीपीटी में बना रखी है तो मैं वहीं पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम बच जाएगा। ये 7 लेयर हैं जो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये आपके पास में, ठीक है ना, आपके स्क्रीन पे है। प्लीज डू, ऐसे नीचे से प्लीज डू नॉट थ्रो सास पिज्जा, 7 लेयर, लेयर नंबर 1 2 इनकी नंबरिंग कर दी गई, ठीक है। अब इस लेयर को हम बच्चों को याद भी कराते हैं, हम लोग करते हैं। अब इस लेयर को हम समझने की कोशिश करेंगे इन द प्रैक्टिकल मैनर कि ये लेयर किस तरीके से काम करता है, राइट। थोड़ा सा यस, अमित सर आप अनम्यूट हो सकते हैं, या कोई भी अनम्यूट जिसे नेट बैंकिंग अपने लैपटॉप से या मोबाइल फोन से करने में माहिर हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा। एनीवन, वो मुझे बताएंगे और इस लेयरों को साथ के साथ समझते चलेंगे, फिर मैं कंप्यूटर साइंस किस ब्रांच से रिलेटेड वो भी आपको समझ में आ जाएगा। यस, एनीवन जो नेट बैंकिंग से वॉलंटियर, जिसे नेट बैंकिंग करते हैं, सभी लोग करते हैं मुझे पता है, कोई जान वॉलंटियर कौन होगा? यस शक्ति सर। यस सर। ठीक है, मान लीजिए अब देखिए इंटरनेट का, पहले आपसे मैं आगे बढ़ूं बस एक चीज और समझ लीजिए। देखिए ये जो कंप्यूटर है एक सर्वर कंप्यूटर है, आईसीआईसीआई बैंक का है सपोज करते हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर आपका है। आप अपने घर से इस कंप्यूटर में नेट बैंकिंग मतलब आपको इस सर्वर से ही सारी इंफॉर्मेशन लानी पड़ेगी। रास्ता आपको साफ साफ यहाँ दिखाई दे, रास्ता यही होता है मोटे मोटे तौर पे, जो मैंने आपकी स्क्रीन बताया आज की डेट में यही वे है, ठीक है। आप अपने इस कंप्यूटर से नेट बैंकिंग की साइट के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। अब मेरा पहला सवाल, आपको अपने कंप्यूटर से नेट बैंकिंग करना है तो अपने कंप्यूटर में सबसे पहला काम क्या करेंगे, कैसे शुरू करेंगे इस चीज को? कंप्यूटर ऑन करके अपनी साइट, कंप्यूटर ऑन है सब ऑन होने डायरेक्टली अब करना क्या अब मैं, जो हमारी नेट बैंकिंग की साइट है उस पे जाके अपना कहाँ पे खोलोगे? वो आगे अगले एक स्टेप आगे, एक स्टेप और पीछे आओ, साइट कहाँ खोलोगे आप कंप्यूटर में? ब्राउजर में जाके। यस, सबसे पहला काम आपका है कंप्यूटर के अंदर, ये नहीं कि कहीं म्यूजिक बटन दबा दिया, कहीं एमएस वर्ड खोल दिया। सबसे पहला काम करेंगे अपने इस कंप्यूटर में, सब फर्स्ट वर्क इज ओपन द ब्राउजर। ब्राउजर कोई हो सकता है, क्रोम का, मोजिला का, आपका ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ओपेरा का, उससे डजंट मैटर। बट आप अगर नेट बैंकिंग कर रहे हो तो एक ब्राउजर खोलोगे अपने लैपटॉप के, मोबाइल में करोगे तो उसके लिए एप्लीकेशन बनाएगी। तो ये जो ब्राउजर है दिस इज द लेयर नंबर 7, और ये पहला आपने ब्राउजर किया, इसके किसने खोला? आपने खोला, यूजर, ये आप डायरेक्ट यूजर कहलाएंगे, आपने खोला।
आपने जब ब्राउजर खोला, ब्राउजर खोलने के बाद जो सेकंड काम है आप क्या करोगे? जो हमारा साइट होगी वो साइट डालेंगे, एड्रेस साइट का एड्रेस डालेंगे। बिल्कुल सही बता रहे सर। तो सेकंड काम आप उस पे डालोगे www.icicibank.com, www.sbibank.com, जो भी बैंक है वो उस पे डालोगे। जो आपने एड्रेस में साइट डालोगे वो क्या करेगा, मेरा कंप्यूटर यहाँ से जाएगा। ये सब काम इतने फास्ट होते हैं। इस कंप्यूटर के अंदर जो हमारे बैंक का सर्वर है, इस कंप्यूटर का कौन सा पेज पब्लिकली ओपन होना, वेब पेज, उसको यहाँ से उठा के लाएगा और वो वेब पेज जो है आपके स्क्रीन पे ओपन कर देगा। ये जो वेब पेज है नंबर 2, इसमें दूसरा काम हो गया। पहला ब्राउजर प्लस वेब पेज। वेब पेज भी एक एप्लीकेशन है जो आपके स्क्रीन पे आएगा, पब्लिकली जो ओपन करना है। ठीक है ना, 2 काम हो गए। दोनों क्या कहलाए, आपके एप्लीकेशन कहलाए। ठीक है, और किसने किया, आपने किया। उसके बाद सर जब वेब पेज खुल जाएगा फिर नेक्स्ट काम क्या करेंगे सर? जो हमारी इंटरनेट बैंकिंग की क्रेडेंशियल है वो क्रेडेंशियल कहाँ डालेंगे, लॉगिन या फिर लॉगिन में लॉगिन। ठीक है, आपको यहीं पे आपको ये भी समझ में आएगा कि फेसबुक, व्हाट्सएप या गूगल मेल को आप सिक्योर मान रहे हैं या नहीं। आपने इसमें क्या, लॉगिन बटन, फेसबुक में भी होता है, गूगल में भी होता है। कोई ईमेल खोलो, सेकंड अगर आपको पर्सनली कोई चीज जानी है तो लॉगिन बटन बताएंगे। लॉगिन बताने के बाद आपके स्क्रीन पे एक पेज आएगा या एक ऑप्शन आएगा जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड। यह भी एप्लीकेशन है बट इसका दूसरा, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। पहले इसकी जरूरत नहीं थी लेकिन बाद में टीसीपी आईपी में इसको ऐड किया गया कि भैया ऐसा है ना, पर्सनल चीज क्यों ओपन कर रहे हो, तो केवल उसी खुलना चाहिए। तो इसमें ताला चाबी जितने हैं, चाहे आप हो मैं हूं, हर आदमी का ताला चाबी अलग होगा। ठीक है ना, तो ये भी आप खोलोगे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, कंप्यूटर में जाएगा, आपका क्रेडेंशियल वेरीफाइड करेगा और आपका रिलेटेड जो वेब पेज है वो भी एक एप्लीकेशन है, दिस इज अ पार्ट ऑफ एप्लीकेशन, वो भी यहाँ पे ओपन होगा। आपका अकाउंट है, आपके रिलेटेड आएगी जो भी इंफॉर्मेशन, मेरा है तो मेरे रिलेटेड आएगी। ठीक है ना सर, यहाँ से फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई भी बैंकिंग हो, नॉर्मल इंटरनेट भी हो तो भी यही हो। उसके बाद क्या होगा सर, थर्ड बैंकिंग में आप करने के बाद और क्या क्या ऑप्शन पॉसिबल है? सर हो सकता है कि जैसे ही मैं अपना क्रेडेंशियल डालूं उसके बाद एक ओटीपी की मांग करे, जो हमारा नया एडिशन, वो नया एडिशन है, 7 लेयर के बाद एडिशन की गई थी वो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। अभी मैं 7 लेयर की बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर तो सर जैसे ही हम अपना क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करेंगे तो हमारा जो वेब पोर्टल है मेरे क्रेडेंशियल का वो ओपन होके आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर ज्यादा देर तक आप इंटरनेट ना करें, रिफ्रेश कर दें, क्या होगा सर, लॉग आउट हो जाएगा। बिल्कुल, सेशन इन द नेट बैंकिंग, इन द जीमेल, इन द फेसबुक, क्या वहां पे ये लेयर अवेलेबल है? नहीं है। समझने मैं क्लियर प्रैक्टिकली बता दूं, सेशन कई तरीके से हो सकता है। जैसे यहाँ बैंकिंग था तो बैंकिंग में बोला ओनली 1 सेशन अलाउ, रिफ्रेश करोगे या कुछ और भी करोगे तो तुरंत लॉग आउट हो जाएगा। किसी में हो सकता है मल्टी सेशन, कई जगह हो सकता है कि अगर आपने इस कंप्यूटर से, हम लोग एग्जाम कराते हैं यहाँ पे, तो मेरा अगर इस कंप्यूटर में लॉगिन हो गया, सेम टाइम में दूसरे कंप्यूटर में लॉगिन नहीं हो सकता। कई जगह एक साथ बहुत सारे तो सेशन के कई डेफिनेशन है, वो अलग अलग होते हैं। तो बैंकिंग में डेफिनेशन है, लेकिन फेसबुक में या आपके जीमेल में ये सेशन मिसिंग है। लेकिन ये भी काम आपके ही कंप्यूटर पे, ये जो तीनों काम है, ये तीनों काम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर मैनर में, कीप इन द माइंड दिस ऑल वर्क इन द सॉफ्टवेयर मैनर, आपके ही कंप्यूटर पे हुआ। इनको बोलते हैं यूएसएल, यूजर सपोर्ट लेयर, यूजर सपोर्ट लेयर। ओके, ये चीज क्लियर हो गई कि सॉफ्टवेयर मैनर में यूजर डायरेक्टली अपने कंप्यूटर पे करता है जो कुछ कर रहा होता है। 3 काम स्पेशल काम है जो किया गया। जैसे अभी आपने बोला सर कि ओटीपी, ये सब एडिशनल हम ऐड कर रहे हैं, अभी हम इसको एक्सटेंशन में नहीं लाए हैं। ये हमारे, मैंने बोला ना 10.5 लेयर हो गई, तो उनमें से एक पार्टी, एक आपका ये भी एक चीज है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आप देखेंगे जो अगला जो ऑप्शन है, तो पहले मैं क्लीन कर देता हूँ। अब आपका डाटा यहाँ से निकलेगा कंप्यूटर से। अब कंप्यूटर से डाटा मूवमेंट कैसे हो रहा है? आपका मूवमेंट यहाँ से हो सकता है थ्रू वाईफाई, हो सकता है थ्रू लैन केबल, हो सकता है थ्रू ब्लूटूथ, हो सकता है थ्रू टावर, हो सकता है। दीज ऑल आर द लेयर नंबर 1 मूवमेंट का, ट्रांसमिशन का पहला लेयर या नेटवर्क का पहला लेयर। डाटा यहाँ से निकला तो जितना वर्ड, इसमें क्या क्या ऑप्शन आएगा आप खुद समझदार हैं। वाईफाई आ सकता है, ब्लूटूथ आ सकता है, लैन केबल आ सकता है, एनआईसी कार्ड आ सकता है, जो भी यहाँ से निकल के फर्दर आगे जाने के लिए आपको सपोर्ट करे, नंबर 1। ठीक है, इसके बाद यहाँ लोकल में जितने लोग होते हैं सारे के सारे कहाँ इकट्ठा होते हैं? स्विच पे, डेटा लिंक टू। स्विच का काम क्या है? लोकली जितने लोग हैं सबको इकट्ठा करके ताकि मेन लाइन पे भेजा जा सके। ठीक है, फिर ये जाएगा सारा राउटर में,
This is the layer number 3. Router. Router is the example of the layer number 3. Switch is example of the layer number 2. बाकी सारी कनेक्टिविटी जो लोकल लेवल पे हो रही है सब लेयर नंबर 1. इन्हें बोलते हैं NSL, नेटवर्क सपोर्ट लेयर. दिस नेटवर्क सपोर्ट लेयर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया. USL, यूजर सपोर्ट लेयर, जो सॉफ्टवेयर मैनर में. नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ये पूरी के पूरा नेटवर्क है, पूरा का पूरा ट्रांसमिशन पार्ट है, एक जगह से दूसरी जगह में. अब बच गया ट्रांसपोर्ट लेयर. अब शक्ति सर आप मुझे ये बताएं कि ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता होगा. बाकी अगर मेरी बातें समझ में तो भी समझ में आएगा. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो सकता है, क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज है इन ट्रांसपोर्ट लेयर में, कुछ माइंड में आ रहा है सर? आर यू देयर सर? डेटा का एक्सचेंज. डाटा यहाँ से निकला, अब यहाँ जा रहा है सर, वो भी दोनों देख लिया. डाटा जो कर रहे हो या यूजर ने यहाँ कर दिया, डाटा मूवमेंट हुआ नेटवर्क में हुआ. हर नेटवर्क का अलग अलग लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 बोला गया, वो समझ में आ गया. राउटर इज लेयर 3 एग्जाम्पल. ओके, स्विच इज लेयर 2 एग्जाम्पल, वो समझ में. तो ट्रांसपोर्ट डेफिनेटली ये बीच में है, तो ऐसा काम कर रहा होगा आने जाने से लेके और यूजर वाले के बीच का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होगा, कुछ ना कुछ सपोर्टिंग काम कर रहा होगा. तो क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल यस, डाटा एक्सचेंज में डेफिनेटली मदद कर रहा है, तो किस तरह से मदद करेगा? अच्छा सर एक चीज बताओ सकती सर, कि अगर मैं आपको ईमेल भेजूं, ईमेल कहाँ देखोगे? इनबॉक्स में. अपने ईमेल बॉक्स में देखोगे, नो डाउट. मैं अगर आपको ईमेल भेजूंगा तो अपने ईमेल बॉक्स में होगा. इसका मतलब ये तो नहीं कि मोबाइल का हैंडसेट या फोन का हैंडसेट उठा के हाय हेलो करोगे. मैंने ईमेल भेजा, फोन का हैंडसेट उठा के कान में लगा कर हाँ भाई ईमेल आ गया, ऐसा तो नहीं होगा ना. नहीं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन में जाके देखेंगे. मैं किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ दूसरे एंड पे कैसे पता चलेगा? मैं यहाँ पे जूम में हूँ, जूम में क्या कई लेयर यूज हुई है. किस चीज, वेबसाइट कहाँ खुलेगी? जैसे शुरू में आपने बोला वेबसाइट ब्राउजर में खुलेगी, तो ये बेसिकली क्या है, ऑलरेडी ISO ने इसमें पोर्ट नंबर डिसाइडेड किया हुआ है. जैसे कंप्यूटर से निकलता है मेरा कंप्यूटर तुरंत, तो भैया ये तो PDF भेज रहा है, भैया ये साउंड भेज रहा है, ये ईमेल भेज रहा है, वेबसाइट भेज रहा है. पोर्ट नंबर वो आप लोग पढ़ते होंगे 808080440321, साउंड का 760. ये बहुत सारे पोर्ट नंबर ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है. जैसे निकलता है एक आइडेंटिटी दी जाती है, दूसरे एंड का कंप्यूटर तुरंत कहता अच्छा ये तो वेबसाइट खोलने के लिए बात कर रहा है या उसकी कर रहा है. ये बेसिक लेयर है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर. ट्रांसपोर्ट लेयर बेसिकली वो इस चीज को हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन करने में, जो दोनों कि किस चीज का मैं ट्रांसपोर्टेशन कर रहा हूँ. अब रहा साइबर सिक्योरिटी. पहली बात, ये जो शुरू के 3 लेयर है, किस ब्रांच की जरूरत नहीं है. कंप्यूटर साइंस का बंदा है, वो सॉफ्टवेयर में एक्सपर्ट होता है, जो हिट करेगा सॉफ्टवेयर की तरफ से करेगा. जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का है भैया वो नेटवर्क का मास्टर है, मैं नेटवर्क से ही सारा कंट्रोल करता हूँ. अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कश्मीर में सारा टेलीफोन बंद कर दो, आज खतरा हो सकता है, किसान आंदोलन हो रहा है इंटरनेट बंद कर दो, सॉफ्टवेयर में नहीं होता सारा. साइबर सिक्योरिटी का मतलब है चोरी नहीं, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. पहली चीज है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, चोरी तो कोई भी कर लेगा, प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आप अगर इस पे सिक्योरिटी बनाओगे एप्लीकेशन लेयर पे, तो एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी होगी. जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला, आपने अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली अभी गौरव सर ने एक वो हमारी तरफ से दिया गया था, www मत यूज करो. अब बोला जा रहा है कि इंडिया में कोई ओपन वेबसाइट नहीं होगी. HTTPS रखिए, आप सिक्योर बनाइए, www ओपन फ्री हटा दीजिए कि आप केवल आप www खोलो नहीं खुलेगा आपका. ठीक है, तो ये एप्लीकेशन लेयर पे बनाई जा रही है, जिसका एप्लीकेशन लेयर पे सिक्योरिटी हो जाएगी. ये भी तो तरीके हो सिक्योरिटी, तरीका बहुत हो सकता है आपकी तरफ. एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी, सेशन लेयर सिक्योरिटी. जैसा ने बोला प्रेजेंटेशन लेयर सिक्योरिटी में क्या हमने ऐड ऑन किया, OTP आ जाए भाई, 2 बार गलत डालोगे तीसरी बार ब्लॉक हो जाए. ये सब हमने बाद में ऐड किया, पहले नहीं होते थे सारे चीजें, ये हम ऐड कर रहे हैं 10.5 लेयर के अंदर में. ठीक है ना. इसी तरह से नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आपका फिजिकल लेयर, वाईफाई, हर कोई वाईफाई से ना जुड़े. ये यहाँ पे ACL होता है, राउटर में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो मैं अभी बोल रहा था कि कश्मीर में बातें बंद करनी है या वहां बंद करना है, एक कमांड देंगे पूरा का पूरा वहां बंद हो जाता है. तो अब जो ये है, कंप्यूटर साइंस वाले ज्यादा मास्टर होते हैं, सीखना सारा पड़ेगा, लेकिन जो सॉफ्टवेयर में कौन ज्यादा हाथ खुला है, कंप्यूटर वाले. इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये है. IT वाले बेचारे बीच में रहते हैं, उनको दोनों चीज सीखनी पड़ेगी, कंप्यूटर साइंस की भी और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी कुछ ABCD या नेटवर्क की भी ABCD आनी चाहिए. तो ये है साइबर सिक्योरिटी
आपका एक बेसिक आइडिया जो मैंने आपके सामने रखा, होपफुली थोड़ा बहुत लग गया। डाटा लेयर, नेटवर्क सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, हर लेयर के आओ आप इसका थ्योरी पार्ट आप पढ़ते ही हैं, पढ़ाते भी है। थोड़ा सा जो मैंने बताया अगर इसको आप और अपने हैंड आउट में या बुक्स में जो भी आप करते हैं इसको रिलेट करिए तो और अच्छा लगेगा, बच्चों को भी याद रहेगा कि लेयर है कहाँ पे सिक्योरिटी, कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या हो सकती है। तो डेफिनेटली अगर आपको, इसीलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो नेटवर्क है ना, ये वाला गवर्नमेंट ने पहले तो सोचा नहीं था, जानकारी नहीं होती लोगों को, तो उन्होंने कहा भी सब प्राइवेटाइजेशन कर दो, ठीक है ना। तो धड़ाधड़ प्राइवेटाइजेशन चल रहा था, लेकिन जल्दी रियलाइज हो गया भी अगर नेशनल लाइन भी दे दिया ना हमने प्राइवेट हाथ में तो डेफिनेटली सारे के सारे कंट्रोल कर लेगा पूरी इंडिया को। इसलिए ये जो लाइन है कभी भी प्राइवेट नहीं होगी। पीपीपी मॉडल इज एप्लीकेबल, पब्लिक प्राइवेट एप्लीकेबल। तो दिस लाइन इज ऑलवेज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय डिफॉल्ट बीएसएनएल कर रहा है। तो बीएसएनएल को डेफिनेटली किसी और नाम से आ जाए, कैसे आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट हमेशा रहेगा ये। यानी कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो, कोई डाउट आ रहा हो, और हमने 5 मिनट तक आप लोगों ने बहुत अपना समय दिया और मेरी बातें भी बड़े ध्यान से सुनी। मन में कोई किसी भी तरह का कोई सवाल, चाहे टेलीकॉम से हो या फिर किसी भी फील्ड से आप पूछ सकते हैं, अगर मेरे बस में होगा तो डेफिनेटली हम आंसर देंगे। आप सब मिलकर अच्छा लगा, आज आप बहुत अच्छा त्यौहार भी है, तो सेशन को ओवर करें। गौरव सर आप अगर हैं तो सेशन को ओवर किया जाए। यस सर, सेशन हम लोग ओवर कर सकते हैं। और जो भी पार्टिसिपेंट ने अभी तक इवैल्यूएशन फॉर्म कंप्लीट नहीं किया है, इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लें बाय टुडे इटसेल्फ, अदरवाइज सर्टिफिकेट फिर जनरेट होने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे भी आप लोग ये सेशन ओवर होता है उसके बाद आपको टाइम मिलेगा तो आप आज इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट कर लें। थैंक यू के सर, आपने इतना अच्छा सेशन हम लोग की कंडक्ट किया ट्रेनिंग प्रोग्राम में पूरे, और नीरज सर ने भी काफी अच्छे सेशन कंडक्ट किए, और अभिषेक सर से हमारा काफी कोऑर्डिनेशन रहता है इन सब चीजों में ट्रेनिंग कंडक्ट कराने के लिए। तो अभिषेक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी स्टाफ मेंबर जो भी ALTC से हमारे कनेक्टेड थे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए, उनका भी बहुत सहयोग रहा इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। IRDT के बिहाफ से मैं सभी का धन्यवाद देता हूं, और सभी पार्टिसिपेंट को भी धन्यवाद देता हूं इस प्रोग्राम में प्रतिभाग करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे, और त्यौहार सभी को। थैंक यू सर। सी किए हुए हैं कुछ कंप्यूटर का कोर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आपने सबमिट कर दिया, बैक एक करना हो पाएगा? थैंक यू सर।